Hello friend, now this is time for learning combustion and flame. What is combustion and flame? We will explain it in deep. What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as glow. In other words, flames are results of combustion, a chemical reaction where a substance reacts with an oxidant, usually oxygen, to produce heat and light. Okay. The types of combustion. Combustion is a chemical process in which fuel reacts with oxygen to release energy through heat or light. There are around 6 different types of combustion. Number 1, incomplete, 2 complete, 3 spontaneous, 4 explosive, 5 slow and 6 rapid combustion. इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है, आइए. इनकम्प्लीट कम्बशन occurs when fuel burns in a limited supply of oxygen or air to form carbon monoxide, soot, water vapor and heat. Incomplete combustion occurs when there is some blocking of the air gas burner, due to which air supply becomes limited and LPG burns will yellow orange flame and soot is also released as shown. Okay. दूसरा क्या होता है, complete combustion. The complete combustion उससे कहते हैं. The complete combustion occurs when fuel burns in a sufficient air supply to produce carbon dioxide, water vapor and heat. LPG burning in an adequate air supply producing blue flame indicates complete combustion of LPG as shown. Number 3, spontaneous combustion. Spontaneous combustion occurs when a substance of fuel undergoes combustion and spontaneously burns in the environmental condition without any external heat supply. When white phosphorus is kept in the air in a figure below, it reacts with oxygen to form phosphorus oxide and spontaneously ignites due to a low ignition point or temperature of 30 degrees C. Okay. जैसे एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, फास्फोरस टुकड़ा रखते हैं जैसे हम लोग, जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री से पहुंचता है अपने आप इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है. नंबर 3 और नेक्स्ट 4, एक्सप्लोसिव कम्बशन. एक्सप्लोसिव कम्बशन क्या होता है, जैसे फायर क्रैकर्स होता है, पटाखे जो शादियों में जलते हैं, उसमें 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी. ऐसी कम्बशन में हमारा 2 टाइप्स की एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे एक लाइट होता है और एक हीट होता है. लेकिन एक्सप्लोसिव कम्बशन में क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड. पहला होता है हमारा लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी, जो साउंड से बूम आवाज़ होती है उसे निकालते हैं. जैसे हम लोग एक्सप्लोसिव कम्बशन अकर्स व्हेन कम्बशन अकर्स वेरी फास्ट एंड इग्निशन अकर्स टू प्रोड्यूस हीट, light and sound. Explosive combustion occurs when a firecracker is ignited and there is release of heat, light and sound energies as shown. Slow combustion क्या होता है, as the name suggests or indicates, combustion that occurs slowly is known as slow combustion. It is low temperature, a flameless form of combustion when a smoldering matchstick is dropped on a cloth as shown in figure
तो ये क्या होता है, इट बर्न्स एंड मेक ए होल ऑन द बेड शीट। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कभी कभी बिस्तर पर गिर जाता है हीट पीते हुए, तो ये माचिस स्टिक से वो बत्ती लाल सिगरेट से चादर या टुकड़ा जल जाता है और पता नहीं चलता हम लोगों को, सुराख सुराख होकर फिर बुझ जाता है वो सारा चीज़। नेक्स्ट हो हमारा, डिड यू नो टू बाय रॉकेट propulsion the combustion of solid propellants provides the necessary thrust. The appropriate thrust for rocket results from the high heat of combustion, meaning large energy is released. Rapid combustion. Rapid combustion causes fire and occurs with the release of a large amount of heat and light. Burning kerosene oil is a kerosene lamp or burning LPG in gas stoves are example of rapid combustion as shown in figure below. Okay. Now summary of combustion of flame. There are 6 types of combustions: incomplete, complete, spontaneous, explosive, slow, and rapid combustion. Incomplete combustion occurs when fuel burn in a limited supply of oxygen or air. Complete combustion occurs when fuel burns in a sufficient air supply. Spontaneous combustion occurs when a substance or fuel undergoes combustion and spontaneously burns without any external heat supply. तो ये समझ गए बच्चों। अब आगे जाते हैं हम लोग। Explosive combustion occurs when combustion occurs very fast and ignition occurs to produce heat, light and sound. Combustion that occurs slowly is known as slow combustion. Combustion that occurs quickly with the release of large heat and light is known as rapid combustion. अब why does forest catch fire? जैसे हम लोग जानते हैं कि अक्सर जंगल में आग पकड़ लेती है, जंगल में जलता रहता है, आए दिन न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं। फॉरेस्ट कैच फायर मेनली बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉजेज। पहला होता है नेचुरल एंड दूसरा होता है ह्यूमन मेड कॉजेज। तो पहला होता है नेचुरल कॉजेज। क्या होता है? जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होता है, जैसे एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है और वोल्केनिक इरप्शन किसी जगह हो जाता है, तो उसके लावा के जो चिंगारी निकलती है उससे आग पकड़ता है। बाद में चूँकि सारा चीज़ सूखा होता है, लीफ सूखा होने की वजह से फ़ौरन स्टेम वगैरह में पत्ते पेड़ पौधे में आग पकड़ लेता है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है मैन मेड। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, हमके माचिस स्टिक को जलाया, सिगरेट पिया, छोड़ दिया किसी जगह जला हुआ, या सिगरेट बुझती है, सिगरेट को हम लोग कहीं फेंक देते हैं तो पत्तों में चला गया, घास फूस में चला गया, जिससे वो कैश आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे सुलगते वो पेड़ पौधों में भी पहुंच जाता है। तीसरा तरीका होता है जैसे हम लोग पराली जलाते हैं, पराली वगैरह ठूठ वगैरह जलाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, तो उस आग का फ्लो कभी कभी हवा के ज़ोर से इधर उधर छिड़क जाता है और जंगल के एरिया में पहुँच जाता है, जिससे वहाँ कैच आग पकड़ लेता है। इससे बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से हम लोग को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना। वर्ड से निकला है इज द विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ ए फायर इज कॉज्ड बाय ए हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो हाईली जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो तरह का रिएक्शन होता है, आप आगे पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिससे हम लोग जब जलाते हैं तो काफ़ी उच्च मात्रा में हाई क्वालिटी में हीट प्रोड्यूस करता है, उसे एक्सोथर्मिक हीट कहते हैं। मेड बाय ए थिन जोन व्हेन फ्लेम्स आर हॉट इनफ टू हैव आयोनाइज्ड गैसेस components of sufficient density, they are then considered plasma.
उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। डेंस क्वालिटी का होता है, सटा हुआ सटा तो होता है, जब जल जाता है तो उसको फ्लेम में हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। जोन्स ऑफ फ्लेम, ए फ्लेम कैन हैव 3 जोन। फर्स्ट जोन इज द आउटर मोस्ट, outer part या outer zone is the blue flame. Second is the yellow flame or orange flame is the second lower part of lower flame, lower heat flame. And third one is the black zone, that is the nearest to the burning point, has a less amount of heat or temperature. तो जैसे देख सकते हैं बच्चों, उसको फिल्म का जोन हमारा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले आउटर मोस्ट पार्ट में टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। उसके बाद दूसरे जोन में हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है येलो या ऑरेंज जोन में। और ब्लैक जोन में हमारा हो सकता है 600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हमारा हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, तो जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लॉग ऑफ ए ट्री इज नॉट बर्न इजीली व्हाइल ए स्ट्रॉ बर्न्स इजीली। व्हाई? ए लॉग ऑफ ए ट्री डज नॉट बर्न इजीली बिकॉज इट हैज डेंस एंड कंटेन्स लेस सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन compared to the straws. Burning या combustion process होता है, requires heat, fuel and oxygen. Log होता है large size and compact structure, make heat penetration slow and moisture inside also delay the ignition. Second is straw. The light and with more surface areas is contact with air, so it heats up and catches fire easily. Next question हमारा, what is fuel and its type? तो फ्यूल हमारा 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारा सॉलिड फ्यूल, जैसे चारकोल, कोल, इस तरह का होता है लॉग। दूसरा होता है हमारा ऑयल, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन etc। तीसरा होता है हमारा एलपीजी, सीएनजी, गैसेस स्टेट में जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेनली 3 टाइप्स। जैसे होता है सॉलिड स्टेट फॉर्म इन सॉलिड फॉर्म, जैसे यूजुअली फॉर्म फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जैसे एक्सप्लेन एग्जांपल क्या हो सकता है, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पीट हो गया। यूजेस क्या होता है, कुकिंग, हीटिंग, पावर प्लांट्स में हम काम करने में यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारा हीट। दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल्स फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। एग्जांपल्स पेट्रोल, गैसोलाइन या गैसोलीन, डीजल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल etc। यूजेस क्या होता है, व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट में, सम इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ करते हैं। गैसेस फ्यूल क्या होता है, फाउंड इन गैस फॉर्म, बर्न इजीली एंड आर क्लीन कंपेयर्ड ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। और इसमें क्या होते हैं, एग्जांपल में जैसे हो गया तो नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी etc होता है। बायोगैस, हाइड्रोजन etc। यूजेस कुकिंग, हीटिंग, पावर जनरेशन में काम करते हैं। तो नेम सम फ्यूल्स दैट मेक फ्लेम एंड सम डज नॉट। तो क्या होगा सकता है हमारा इसका आंसर, फ्यूल्स या मटेरियल्स दैट गिव्स फ्लेम। So these burns with a visible flame because they produce gases that ignite. Or one more thing also, it vaporizes the materials to burning. Okay, so the materials that vaporizes itself is give flame, and that the materials that does not vaporize that give the glowing light. Okay.
जैसे वैक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब सारे फ्लेम देता है। और ऐसा मटेरियल जैसे हेवी लॉग, चारकोल, कोक, कोल, समटाइम कोक, सॉडस्ट वगैरह, ये हमारा सिर्फ ग्लोइंग लाइट देता है। तो मुझे दोस्तों आप समझ गए होंगे, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और ये हमारे ब्लॉग में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।